السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، اردو موٹیویشنل ویڈیو ہے، پلیز پورا دیکھیں اور محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہیں گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ عورت کے ایک بچے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ہے۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بندے کو اس لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ سکون وہ نہیں جو پیسہ دے، سکون وہ ہے جو عبادت سے ملے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اے اللہ میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ خطا کا پتلا ہوں، معافی چاہتا ہوں عرش والے سے بھی اور فرش والوں سے بھی۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا،
क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी इसी को मारते हैं। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी जबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। मां की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, दोनों ही मुआफ कर देते हैं। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, मुआफ करना और इंसाफ करना। वुजू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन इसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोके, वालिदैन, बच्चा और गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक खत्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। हमेशा ऐसे शख्स का चुनाव करो जो तुम्हें इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए बेहतरीन इंसान हो। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती, गलती से सबक, सबक से तजर्बा और तजुर्बे से कामयाबी हासिल होती है। जब अल्लाह पाक को आपकी जिंदगी में अच्छा मोड़ लाना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो, कल आप जिनके लिए मजाक थे आज आप उनके लिए मिसाल बन जाओ। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह पाक की जात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी को मुआफ करके अच्छा बन जाओ, मगर दोबारे एतबार करके बेवकूफ ना बनो। दुनिया में 2 तरह के दुख हैं, वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो, चेहरे नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं लेकिन खूबसूरत दिल बहुत कम है। सिर्फ 2 लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो आपके हालात से गुजरा हो और दूसरा वो जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का। जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज्जत दे और प्यार दे तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह की रजा के लिए किया। शायद तुम्हें वो चीज नागवार हो जो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और शायद तुम्हें वो चीज पसंद हो जो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पिटते हैं, पर तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहा जब अपना ही अपने को मारता है
تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کر سکتی ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ جب تم بغیر کس وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اب کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ راستہ بناتا ہے، چاہے سب کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو تو اس عورت کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے۔ دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو اب درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ لالچ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور علم تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت مرنے والے کو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ اگر تم لوگ موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے تم نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फायदे के लिए चाहते हैं। सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फायदे के लिए चाहता है। अगर मेरी जिंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। मैं जन्नत के शौक में इबादत नहीं करता क्योंकि यह तिजारत है, और ना ही मैं जहन्नम के खौफ से इबादत करता हूं क्योंकि यह गुलामी है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूं कि मेरा रब इबादत के लायक है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब तय करना होता है, सफा पलटना है या किताब बंद करनी है। मोहब्बत किया है इससे मत पूछो जो किसी से मोहब्बत करता है, इससे पूछो जो किसी को खो चुका है। जिसे देखा इसे मुखलिस जाना, और पता नहीं कितने दुख देखने हैं मुझे। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे लोग जो वक्त भी दी, प्यार भी करें और कदर भी करें। बाज ख्वाहिशात का मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती है। यूं गलत फहमी में रह जाने का सदमा कुछ नहीं। वो मुझे समझा भी तो सकता था कि ऐसा कुछ नहीं। इश्क से बचकर भी खुश नहीं होता, मगर ये भी सच है कि इश्क में बंदे का बचता कुछ भी नहीं। हाथों से दफनाने वाले कब्र भूल जाते हैं। लोगों के किए गए वादे तो फकत अल्फाज हैं। मुझे आते हैं मोहब्बत के तमाम वजीफे। मैं चाहूं तो तुम्हें पागल कर दूं। कभी किसी का टेक्स्ट ना आने पर घंटों स्क्रीन को देखते हुए आंसू आ जाएं तो उम्मीदें नहीं, मान टूट जाया करते हैं। आदम को भला कैसी लगी होगी ये दुनिया। तूने जो मुझे दिल से निकाला तो मैं समझा। हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है वो जिंदगी होती है। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। जब तक लगे ना बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपने प्यारे पे नाज होता है। जिससे मोहब्बत हो इसका ख्याल किया कीजिए। गुलाब कभी नहीं बोलता कि मुझे पानी पिलाओ, फिर अगली मुसीबत में इसे याद करेंगे। मुश्किल हुई आसान तो खुदा भूल गए हम। जिंदगी में इतनी मेहनत करनी है कि लोग अपना वक्त बदलते हैं। मैं इंशा अल्लाह अपना दूर ही बदल दूंगा। मैं एक स्टेशन की तरह हूं, मुझे नहीं मालूम कि अलविदा कहूं या लोगों का इस्तकबाल करूं। जन्नत वाजिब हो चुकी है तुम पे मोहतरमा। बहुत लोगों को तहज्जुद का पाबंद बनाया तुमने। इतना सब कुछ अपने अंदर नहीं रखते। तकलीफ बढ़ जाए तो जान ले लेती है। दिल भी मेरा तोड़ा और इल्जाम भी मुझे दे गया। अगर आप बदसूरत हैं तो बदसूरत हैं। ये अंदरूनी खूबसूरती वाली बात बकवास है। आप हर जगह एक्सरे लेकर नहीं जाते। किसी ने मुर्ग से पूछा, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट डालते हैं। मुर्ग ने जवाब दिया, लोगों को जगाने वालों का यही हाल होता है। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए जरा सी रगड़ पर भड़क उठती है, मगर अंजाम अपनी ही आग में जलकर खत्म हो जाती है। हासिद की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। हद में रहना अल्लाह की नेमत है, क्योंकि पानी जब हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, और इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। हर किसी पर यकीन न करें, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। रास्ते पर कंकर हो तो अच्छा जूता पहन के चला जा सकता है, लेकिन जूते में एक भी कंकर हो तो अच्छी सड़क पर भी चलना मुश्किल होता है। हम बाहर की मुश्किलात से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। सोने के मुकाबले में लकड़ी की कोई कीमत नहीं, लेकिन डूबते वक्त हिसाब और होता है। आदमी और परिंदे का नसीब एक सा है। घर चलाने का तकाजा है कि घर में ना रहूं। कोई नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ। जिंदगी के साथ आपकी जंग कैसी है। आपने कितना खोया कोई नहीं जानता। आप कौन हैं, आपका दर्द सिर्फ आपका है। ऊंट अगर बैठ भी जाए तो कद में फिर भी कुत्ते से बड़ा लगता है। सब कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, कुछ चीजें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए।
औरत सब कुछ बांट सकती है सिवाय अपने पसंदीदा मर्द के। फूल देना मोहब्बत नहीं, फूलों की तरह रखना मोहब्बत है। महबूब दुनिया का वो वाहिद कातिल है जिसके पास हम खुद चलकर मरने के लिए जाते हैं। हश्र में बताऊंगा तुम्हें जो हश्र तूने मेरा किया है। इसको सिर्फ बात करनी थी और मैं मोहब्बत कर बैठा। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे ठहर गए। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। गंदी सोच और पांव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। पनाह मांगा करो गुर्बत से, ये सब रिश्ते खत्म करा देती है। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, नमक हर घर में जरूर होता है। अगर मालूम होता कि इश्क इतना तड़पाता है तो हम दिल जोड़ने से पहले हाथ जोड़ लेते। कोई मंजर सदा नहीं रहता, हर ताल्लुक मुसाफिराना है। जब वक्त खराब चल रहा हो तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं। लोगों का दिल रखते रखते कब अपना टूट गया पता ही नहीं चला। वक्त का तो काम है गुजरना, बुरा हो तो सब्र करो, अच्छा हो तो शुक्र करो। खुदा के खजानों में से सबसे कीमती चीज राह हिदायत है। हमने अपनों को झेला है, तुम अजाबों की बात करते हो। कोशिश करें बना मतलब के अच्छे बने, मतलब के लिए तो सब ही अच्छे बनते। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करें। दुनिया कमजोर जरूर है मगर दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं। जब दिल में ख्याल डालने वाला अल्लाह है तो मुकद्दर में लिखने वाला भी अल्लाह है। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। वो मौजिज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला रब आजमाता भी है तो बेइंतहा नवाजने के लिए। चांद भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यार मेरी मां की तो बात ही अलग है। कुछ लोग और कुछ वाकयात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि जरूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। नसीब तो रब लिखता है और फिर रब तो कभी गलत नहीं लिखता। भरोसा रखें, आपका अच्छा नसीब आपको मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। रब फरमाता है सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूं। आज का अखबार कल की रद्दी है, ये बात अपने हसन को समझा देना। एक रब मुखलिस, दूसरी मां मुखलिस। हर शख्स अपनी खुशी चाहता है। हम अगर उदास हैं तो ये हमारा मसला है। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह पाक के जिक्र में है। खुदा तुम्हारी इतनी हिफाजत करे जितनी मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत है। गुनाह हमारी रूह को जख्म लगा देता है और हमें समझ नहीं आता कि बेचैनी किस चीज की है। ये अल्फाज कितना हौसला देते हैं ना। जो भी हुआ इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी। बाप जिंदगी का दिल है, मां जिंदगी की धड़कन है। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सलामत रखे। मुझे जिंदगी का इतना तजर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। इंसान रिस्क के लिए दूर दूर तक जाता है और रिस्क देने वाले को भूल जाता है। समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं और ना समझने वाले जज्बात का भी मजाक बनाते हैं। परफ्यूम की बोतल तोड़ने से आपको शदीद खुशबू आती है, लेकिन आखिरी बार वाहिद यकीन आखिरी उम्मीद अल्लाह ताला। असल जिंदगी का पत्ता तब चला जब बड़े हुए पैसे कमाने हैं, घर को चिल्लाना है, जिम्मेदारी निभानी है और अपने ख्वाबों को दफन करना है। ना जाने कौन सी शोहरत का गुरूर है इंसान को। इंसान तो अपने आखिरी गुस्ल का भी मोहताज है। कुछ लोगों को मुखलसी रास नहीं होती, वो अपने जैसों में जाकर ही मुतमईन होते हैं। यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ ये दोस्त। हम जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना होगा। जब अल्लाह देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा।
सांवली रंगत में हम आम से लोग उलझने बड़ी खास लिए फिरते हैं। मेरे पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं। मैं बात करता हूं तो बात बिगड़ जाती है। तुम क्यों भूल जाते हो जिस शख्स की हकीकत अल्लाह तुम पर जाहिर कर देता है, उसकी हकीकत कभी नहीं बदल सकती। और जिससे तकलीफ के सिवा कुछ ना मिले, वो कैसे तुम्हारे हक में बेहतर हो सकता है। एक खूबसूरत चेहरा बूढ़ा हो जाएगा, एक कामिल जिस्म बदल जाएगा, लेकिन एक खूबसूरत रूह हमेशा खूबसूरत ही रहेगी। तुम मुझे वैसे सुनती ही नहीं जैसे प्राइवेट क्लिनिक पर बैठा डॉक्टर भारी फीस के एवज बीमार की वो बातें भी सुनता है जो उसे मुफ्त में सुनने पर तैश दिलाती है। कभी दिल चाहता है ना कि कोई तो ऐसा हाथ हो जिसे बंदा बना इजाजत जब चाहे थाम ले, कोई मोहब्बत भरा दिल जो हर दर्द समेट ले, कोई ऐसी आंखें जो हमें अंदर तक पढ़ लेने का हुनर जानती हों। दिल चाहता है ना कभी कभी इंसान के एहसासात इस कदर नाजुक है कि इसका सारा दिन एक लफ्ज, आवाज के तेज लहजे या आंख की एक नजर से बर्बाद हो सकता है। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करे, क्योंकि अल्लाह अब से इस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक इससे बेहतर आपको अता ना करे। जब लोगों से तकलीफ मिलती है तो इंसान तन्हा रहने का आदी हो जाता है। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत इंसान वो है जिसकी वजह से कोई रोए। सब नजर का धोखा है, लोग वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। इंसान मरता नहीं, मार दिया जाता है लफ्जों, लहजों और रवैयों से। जिंदगी एक आईना है, आप उसे बेजार होकर देखेंगे तो बेजार हो जाएंगे, और मुस्कुराते हुए देखेंगे तो मुस्कुराते ही चले जाएंगे। हर आने वाला दिन हमें यह बताता है कि हम पहले कितने बेवकूफ हुआ करते थे। सब ने कहा वहीं जाओ जहां तुम्हारी कदर हो, चुनांचे हम अल्लाह की तरफ लूट गए। कभी कभार हमें किसी राह चलते अजनबी की जरूरत होती है जिसे हम अपने तमाम तर दुख सुनाएं और वो सुने भी और आगे बढ़ जाए। दिल में जो है वो सब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आहें, उनसों लंबी नींद, ठंडी मुस्कुराहट और हाथ की कपकपाहट को पैदा किया। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर कभी अफसोस न करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजर्बा देते हैं, बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। खुदारा अपनी कदर कीजिए। जब कभी आप अपनी जिंदगी के हादसात पर नजर दौड़ाएंगे, आप पर इंकिशाफ होगा कि जिस इंसान के आप सबसे ज्यादा माजरत के मकरूज हैं, वो शख्स अब खुद हैं। सब्र ऐसे करो जैसे रोजा रख लिया, इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की अजान होनी है। और फिर जब आपका रब आपको दुनिया के करोड़ों लोगों में से अपने लिए चुन ले, तो आपका फर्ज बनता है सारी दुनिया को छोड़कर उसकी तरफ दौड़ें और उसके हो जाएं और अपने रब की मोहब्बत का फर्ज अदा करें। कुछ लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते बुंदों को रोककर कहीं कि हम तुमसे बेहतर हैं। जो अल्लाह को वकील बना लिया करते हैं, वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। इंसान को जेब नहीं देता कि जब इसका अल्लाह रब अल इज्जत कमाल का मेहरबान और खबरगीर हो, फिर भी बंदा बेआस और बेयकीन हो। आज दुनिया की हालत यह है कि गरीब की प्लेट से ज्यादा अमीर के शैम्पू में ग़िज़ाइयत और विटामिन है। ऐसा जमाना आ गया है कि पता ही नहीं चलता अजीज कौन है, यजीद कौन है। ये सबब पैदा करने वाले रब कोई खूबसूरत सबब बनाकर मेरी उन तमाम राहों को हमवार कर दे जिनके लिए मेरा दिल परेशान है। इससे पूछो अजाब रस्तों का जिसका साथी सफर में बिछड़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं बेहतरी से पहले देर करता हूं और उन्हीं को आजमाता हूं जिन्हें मैं पसंद करूं। जो नुकसान पहुंचाएगा उसे नुकसान पहुंचेगा, और जो तोड़ेगा वो टूटेगा, और जो जुल्म करेगा इस पर जुल्म किया जाएगा। दुनिया एक चक्कर है, बेशक अल्लाह मोहलत देता है,
لیکن غفلت نہیں کرتا، اور اللہ ہر احسان کا بدلہ اس سے دے گا جو دیا گیا ہے۔ نہیں کرو نصیب سے اتنی شکایت، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو زندگی میں اس لیے بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ برے نہیں ہوتے، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب اور کہاں آپ کو اچھا بننے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا ان سجدوں کا جو میں نے دنیا میں مگن ہوتے ہوئے چھوڑ دیے۔ اعتبار صرف عمل پر کریں، کیونکہ زبان صرف ذائقہ بتاتی ہے۔ آپ کو ہر رشتے میں وفاداری ملے گی، پر بات آپ ہونٹوں سے نہیں نوٹوں سے کیا کریں۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ تم ایسے شخص کا نقصان جان سکتے ہو جو ہاتھ اٹھائے اور دعا نہ کرے۔ کچھ لوگ نصیب کے سیاہ ہوتے ہیں، انہیں تعلق تو ملتا ہے مگر محبت نہیں۔ خواہش ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ نفرت بتا رہی ہے محبت غضب کی تھی، جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ من چاہا نہ ملے تو رب چاہے کو دل و جان سے قبول کر لیں، کیونکہ رب بہتر جانتا ہے کہ میری بنائی گئی چیز کس کے ساتھ بہترین رہے گی۔ دعا مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور طلب دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یا رب، پر تیرے سوا میرا خدا کوئی نہیں۔ نوچ نوچ کر کھا گئے تقدیر کے فیصلے مجھے، اب بھی مجھے کہا جاتا ہے ہوش میں رہا کرو۔ میری تحریر سے وہ ڈھونڈنے نکلے مجھ کو، میں نے بھی حرف لکھے ہاتھ نہ آنے والے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ہم سے نہیں ہوتی تعلقات میں بحالیاں، ہم بدل جانے والے کو مردہ تصور کرتے ہیں۔ خدا ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، فصل کی پیداوار کے بیچ نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہذا جب آپ کو لگتا ہے کہ اب ٹوٹ چکے ہوں تو یقین کیجئے کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اجڑ کے گھر آئی بیٹی اور بے روزگار بیٹے کے کمرے کا پنکھا چلے تو بل بہت زیادہ آتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے وہ کبھی اپنی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر ان کا گھر ادھورا لگتا ہے۔ کچھ لوگ اربوں روپے کھا گئے اور کچھ لوگ کھربوں روپے باہر لے گئے، لیکن ہمارے ملک میں پکڑا وہ جاتا ہے جو موٹر سائیکل کے کاغذ گھر بھول کر آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ذمہ داریاں اور بوجھ اپنے اٹھائے ہوئے ہیں یہ آپ کو بچائے ہوئے ہوں۔ ہمیشہ مثبت رہے اور ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ عورت مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، وہ دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو جاتا ہے، اور مرد عورت پر بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری عمر نہیں سنبھل پاتی۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں اب سے بہتر۔ یقین کرے محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی، میں کہتا ہوں اگر عورت راز نہ رکھتی تو معاشرے کا کوئی مرد منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔
कुछ लोग इंटरनेट की तरह होते हैं, जब तक उन्हें जहाज ना दो वो सही से काम नहीं करते। किसी पर दूसरी मर्तबा एतबार करना इसे बंदूक थमाने जैसा है कि ले दोबारा कोशिश कर ले, पहले वाली गोली मिस हो गई थी। हुक्मरान जिनके सर पर मक्खी भी नहीं बैठती, वो मुआशरे के भूखे नंगे गिलाजत के ढेर पर बैठे लोगों का दर्द कैसे समझ सकेंगे। मजहबी महबूबा, उनपढ़ बीवी और देहाती दोस्त तीनों वफादार होते हैं। अगर आप लुमड़ी से दीन सीखेंगे तो धीरे धीरे आप ये मानने लगेंगे कि मुर्गियां चोरी करना एक नेकी है। हमारे जमाने में तालीम आम ना थी तो लोग सच बोलते थे और पूरा तोलते थे। 2 नंबर औरत थी, 2 नंबर किरदार था, मगर 1 नंबर मर्दों का काफी रश था। औरत ने जिस्म बेचा तो वो तवाइफ बन गई, मर्द ने जिस्म नोचा तो वो क्या बना। हर शख्स खा वो बड़ा हो या छोटा, अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करता है जिस पर वो तमाम उम्र नादिम रहता है। वो लोग जिनके हाथ में अवाम को तालीम देने का काम है, वो खुद तालीम याफ्ता नहीं। औरत हमेशा अपनी मर्जी से मर्द के काबू में आती है, इसकी मर्जी के बगैर उसे छूना तो बड़ी दूर की बात, महज टिकटिकी बांध कर तकने पर भी हंगामा खड़ा कर देती है। हमारे यहाँ गैरत के नाम पर अपनी बहनें कत्ल की जाती है और दूसरों की बहनों की हम वीडियो बना लेते हैं। सब लोगों को खुश रखना तराजू में जिंदा मेंढकों को तोलने जैसा है, एक को बिठाओ तो दूसरा फुदक जाता है। अगर आधे लोग ये सीख लें कि उन्हें दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो बाकी आधे लोग सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। पड़ोसी के बच्चों की भूख और फाके से अनजान रहना और उसकी बीवी और बेटी की हरकतों से वाकिफ रहना हमारे मुआशरे का बेहतरीन मशगला है। मर्द ने औरत के साथ अभी तक सोना ही सीखा है, जागना नहीं। इसीलिए मर्द और औरत का रिश्ता उलझन का शिकार रहता है। रोती हुई औरत और मुस्कुराता हुआ मर्द दोनों बहुत खतरनाक हैं। कीमत कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो टके का नहीं रहता। अगर औरतों को लगता है कि हमारे मुआशरे के मर्द बुरे हैं, तो उनको चाहिए कि बतौर मां अपने बेटों की अच्छी तरबियत क्या करें। मर्द ने हमेशा औरत के लिए खुद को बदला है, मगर अफसोस औरत ने हमेशा मर्द ही बदला है। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अपनों में ऐसे लोग पहचान लो। जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हुसूल हो तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। एक तल्ख हकीकत, गरीबी मर्द को नंगा करती है और पैसा औरत को, जिस नियत से तवाइफ बुर्का पहनती है। कुछ मर्द बिल्कुल इसी नियत से दाढ़ी रख लेते हैं। कुछ अरसे के लिए तुम राब्ते में पहल करना छोड़ दो, तुमको पता लग जाएगा कि तुम कितने मुर्दा पौधे को पानी दे रहे हो। ताल्लुक रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक निभाना कमाल है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों से। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा। समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। दूसरों के अच्छे होने का इंतजार मत करो, बल्कि उन्हें अच्छा बनकर बताओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। जो तुझे तेरे ऐब से आगाह करे वो तेरा मुखलिस दोस्त है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी जरूरत पूरी कर दिया करे। उनकी जबान से निकलती हुई दुआ अब की तकदीर बदल सकती है। धोखे देकर कोई नहीं बचता, सी की आह नस्लें उजाड़ देती है। यारब तुझ पे छोड़ दिया सब, इबादत का दिखावा इबादत ही जाय कर देता है। देखना जल्द ही अल्लाह ताला अब की खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। महक गुलाब की आएगी तुमको हाथों से, किसी के रास्ते से कांटे अगर हटा डालो। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज्यादा मजबूत इंसान हैं। अच्छी चीजों में खुद को मसरूफ नहीं करोगे तो बुरी चीजों में खुद ही मसरूफ हो जाओगे। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी उन रोशनियों के मानिंद होते हैं
जो फासले कम तो नहीं करते मगर सफर आसान जरूर बना देते हैं। जबान की नरमी उलझे हुए मसाइल को हल कर देती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। शुक्र करो इस गम का जिसने तुम्हें अल्लाह वाला बना दिया। खुद का मुकाबला किसी से न करो, तुम जैसे हो बेहतरीन हो। बदतमीजी हर इंसान कर सकता है मगर किसी किसी को तरबियत रोक लेती है। जिन्हें आपकी तकलीफ का एहसास ना हुआ उन्हें अपनी तकलीफ का एहसास दिलाने की भी तकलीफ नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। खुश रहने के लिए रिश्तों को आजमाया नहीं निभाया जाता है। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर बनाइए जिससे बात करते हुए आपको अल्फाज का चुनाव ना करना पड़े। बेखौफ है कर आप अपने दिल की हर बात हर वक्त कर सकें। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। मोहब्बत से देखोगे तो गुलाब में रंग मिलेगा, खुशबू मिलेगी, और नफरत से देखोगे तो खार आंखों में खटकेंगे। दुनिया में कामयाब जोड़ा सिर्फ जराबों का होता है, क्योंकि एक के बना दूसरा किसी काम का नहीं होता। इंतजार हमेशा रहेगा पर कभी आवाज नहीं दे पाएंगी। दुख खत्म नहीं होते लेकिन इंसान उनको सहता सहता थक जाता है, चुप हो जाता है। इतना चुप के बाज लोग मुर्दा समझकर ठोकर लगाते हुए गुजर जाते हैं। और फिर यह भी हकीकत है कि मनपसंद शख्स अगर हर मर्ज की दवा है तो दूसरी तरफ डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह भी वही होता है। सब्र की हद से अगर दर्द गुजर जाता है, जिंदा रहने का जो एहसास है मर जाता है। सारी उम्मत के लिए दुआएं करें। हर तरफ फितने ही फितने हैं। अल्लाह हमारे ईमान और इज्जतों की हिफाजत करे, आमीन। औलाद की नहीं वालिदैन की तरबियत की जरूरत है। औलाद की तरबियत खुद ब खुद हो जाएगी। दुश्मनों से ज्यादा वो दोस्त खतरनाक होते हैं जो मुनाफिक बनकर आपके जज्बात से खेलते हैं। जहां रूह के रिश्ते कायम हों वहां फूल मौसमों के मोहताज नहीं हुआ करते, बस खिल उठते हैं। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े रिश्तों की पहचान करवाने आती है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं, ज्यादा बताते हैं। बेशक जिसके लिए अल्लाह की जात काफी हो, इसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। दो अमाल ऐसे हैं कि जिनका हिसाब तोला नहीं जा सकता, मुआफ करना, इंसाफ करना। रब से इसके फैसलों की तब्दीली की दुआ ना मांगें बल्कि दुआ मांगें कि वो आपका दिल अपने फैसलों के ताबे कर दे। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए कि अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी अच्छे अखलाक और बेहतरीन लहजे की मोहताज है। तुम्हारा काम बस इतना है कि अल्लाह की बात मानो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। लोगों की बातों से गमज़दा मत हो। अल्लाह वाले कभी अना वाले नहीं होते और अना वाले कभी अल्लाह वाले नहीं होते। अगर आपको सुकून की तलाश है तो लोगों में सुकून तकसीम करो। मुखलिस इंसान हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। जिंदगी अगर आसान होती तो खुदा जन्नत का वादा नहीं करता। छोटी सोच और पांव में मोच इंसान को भी आगे नहीं बढ़ने देती। हालत कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता अल्लाह और उसके बंदे का है। जिंदगी के सफर में बेहतरीन सवारी सब्र है। लोगों को इतनी जल्दी मुआफ कर दिया करो जितनी जल्दी तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो। खूबसूरत होना अच्छा नहीं है, अच्छा होना खूबसूरत है। ताल्लुक रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मलना नामुमकिन है।
آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل ہو جائے۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ جب اللہ آپ کو منتخب کر لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس نے مسترد کیا۔ یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے نواز دے جس میں خیر و برکت اور سکون ہو، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ ہمارا رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بلکہ بہترین تربیت، اعلیٰ ظرفی، اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کرے۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کرے، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے پر کسی کی زبان بولتی ہے، کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی تربیت۔ زندگی میں جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات دل پر لگتی ہے۔ یقین کریں آپ کا نصیب آپ کے رب نے لکھا ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، لیکن ہم اس کے کن کی امید نہیں چھوڑیں گے۔ غلطیوں کا ازالہ اگر وقت پر نہ کیا جائے پچھتاوے مقدر بن جاتے ہیں۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتے، لوگوں کو جیتے۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب دل میں ہوں۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو۔ 100 دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن ہے منافقت نہیں کرتا۔ غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جسے پینا ثواب ہے۔ توبہ کرنے میں تاخیر سے بچو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے لالچ نکال دو۔ شرافت کی زندگی کا قصہ ختم۔ اب جیسی دنیا ویسے ہم۔
जब तक तो बुराई का रास्ता भूल ना जाए, तब तक नेकी का रास्ता कभी नहीं पा सकता। मैंने अल्लाह से ज्यादा किसी को मेहरबान नहीं पाया। किसी को रब से सब चाहिए और किसी को रब से रब चाहिए। सिर्फ पैसे का होना ही रिस्क नहीं है। नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी बेहतरीन रिस्क में शामिल हैं। वो हाथ बहुत अनमोल होते हैं जो आपको इस वक्त संभालें जब आप टूट कर बखर रहे हों। किसी का दिल इतना मत दिखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। लोगों को इतनी ही अहमियत दो जितनी वो तुम्हें देते हैं। कम दोगे तो मगरूर कहलाओगे, ज्यादा दोगे तो गिर जाओगे। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा अकेले ही पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। वक्त सबका आता है, बस वक्त आने में वक्त लगता है। हमारा जवाल देखने के मुंतजिर कोई गैर नहीं, बल्कि अपने ही होते हैं। अच्छा नजर आने से कुछ नहीं होता, अच्छा बनने से अच्छा मुआशरा बनेगा। जो शख्स सद्दों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। अपनी रहमत के खजानों से अता करे मेरे मालिक। ख्वाब औकात में रहकर नहीं देखे जाते। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है कि ना तो पहली बार खुद नहा सकता है और ना ही आखिरी बार। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देखकर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान जिंदगी भर का होता है। बाज औकात दुआ ए रब के फैसले नहीं बदलती, मगर आपका दिल बदल देती है और रब के फैसले के मुताबिक कर देती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और रिस्क भी सिर्फ अल्लाह ही है। जिस पर उम्मीद रखो तो अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्करा दे तो इस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती है तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो गुनाह ना करे। जिंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की पसंद तो पलक झपकने से पहले बदल जाती है। वक्त भी कितनी अजीब चीज है, किसी से गुजरता नहीं, किसी के पास होता नहीं। जबान में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन ये इतनी मजबूत होती है कि वो दिल को तोड़ सकती है। आपका बहुत बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। जिंदगी के महंगे सबक हमेशा सस्ते लोग ही देते हैं। जब अल्लाह हाथ थाम लेता है तो गम में भी मोहब्बत की मिठास महसूस होती है। अमीर अपनी आसाइशें ना छोड़ें, सिर्फ नुमाइशें छोड़ दें तो गरीबों की जिंदगियां आसान हो सकती है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें।